بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے قرآن اور حدیث سے۔ آج چونکہ پہلی بار ہے تو قرآن مجید سے شروع کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں جو ہے وہ ہم نے سورہ فاتحہ جو میں نے ابھی پڑھائی ہے اپنی کلاسز کو، ایک اور کلاس ہے قرآن مجید کی، تو وہ سورہ فاتحہ ان کی ختم ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلو اس کے نا سلائڈس جمع کر کے میں آپ کو نا وہ پڑھا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے قرآن مجید کی، ماں کا جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے، تو اس کا حق بھی زیادہ ہے، اور یہ پڑھتے ہیں اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے، چونکہ سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید کا 1/10 ہے۔ ہر 10واں لفظ وہ قرآن مجید سے ہے، اس کا سورہ فاتحہ کا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ریشو کے لحاظ سے۔ تو اگر 78,000 الفاظ ہیں تو یہ 7,500 الفاظ جو ہے نا قرآن مجید میں وہ سورہ فاتحہ کے ہیں۔ تو اگر آپ کو لفظی معنی آتا ہو نا، اور ایک اس کا مادہ پتہ ہو، تو پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کو ساتھ میں رولز بھی پتہ ہوں کہ یار یہ اعوذ جو ہے کیسے بنا ہے، تو پھر تو معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ آنی چاہیے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ آپ کو جتنا ہو سکے وہ میں پڑھ سکوں۔ باقی میں نے پی ڈی ایف شیئر کر دیا ہے ٹیچر گروپ میں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو مکمل طور پہ، اور اس کے ساتھ اور بھی معلومات میں نے سینڈ کی ہے، تو وہ بھی آپ اضافی بھی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز میں نے سینڈ نہیں کی آپ کو، اور وہ ہے رولز اور گرامر جو اس میں یوز ہوا استعمال ہوا ہے، وہ آلریڈی آپ کو آتا ہے، جیسے فعلان کیوں آتا ہے، فعیل کیوں آتا ہے، جیسے حروف جر کیا ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ فعلان کیا چیز ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو فاعل مفعول کا وہ میں نے آپ کو شیئر نہیں کی۔ تو سورہ فاتحہ کے الفاظ پہ ذرا غور کرتے ہیں، اور یہ آپ کو آتے ہیں، اس لیے میں ذرا ایسے نا اسپیڈ سے جاؤں گا تاکہ تاکہ مکمل ہو سکے۔ تعوذ شروع قرآن میں ہے ہی نہیں تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا نہیں ہوا، لیکن ہم پڑھتے ہوتے ہیں، سنت ہے، بعض نے کہا مستحب ہے۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ ہم یہاں سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ سورہ نحل جو ہے اس یہ 14 پارے میں ہے، اس میں ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، ف اور اذا، جب، قرأتا تم نے پڑھا، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ماضی آتا ہے نا اذا کے بعد، تو یہ اس کا معنی جو ہے ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں، اور جب تم پڑھو، ایسے ہے نا، وہ لفظ ہے اذا جاء، اور جب آئے، تو اس طرح ترجمہ کرتے ہوتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ، بس تم جب پڑھو القرآن، قرآن کو، فَاسْتَعِذْ، تو پناہ مانگو، کیا؟ باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، اس کو بگایا ہوا ہے، بگائے ہوئے بگوڑے کی شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ بس اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر جو ہے وہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، اس کا نام ہے پورے جملے کا، استعاذہ، یہ اس کا نام ہے، استعاذہ یعنی کہ پناہ مانگنا۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، اور یہ ہم نے پتہ ہے کہ عطین شروع میں آیا ہوا ہے، تو انا اعوذ انت تعوذ هو يعوذ نحن نعوذ باللہ، اللہ کی، اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، اللہ کو اس میں ذات اور اس میں جلالت کہہ کے ہم نہ آگے چلے جایا کریں گے۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من سے، الشیطان بہت ہلاکت والا، رحمت سے بہت دور، اور رجیم کا معنی ہوتا ہے مردود، بگایا ہوا۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ اعوذ 17 بار آئے ہوئے ہیں، اللہ جو ہے 27 بار تقریباً آیا ہوا ہے، 2700 بار، اور من جو ہے 3,000 بار تقریباً، شیطان 88,000 بار، اور 88 بار سوری، رجیم جو ہے 14 بار تقریباً۔ اب ذرا اس کے نا الگ الگ سے دیکھیں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، یہ جو شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے یہ انا کی علامت ہے، یعنی میں، اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ جو باقی بچا ہے نا، عین وہ زال ہے، جس سے بننے والے 7 الفاظ ہیں قرآن مجید میں، اور وہ قرآن میں 17 بار آئے ہوئے ہیں، لفظ تو 7 ہیں لیکن 17 بار آ چکے ہیں، یہ عین وہ زال سے، پناہ سے۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے حال میں کرنا ہے۔ وہ سارے الفاظ میں نے آپ کو دوسرے پی ڈی ایف میں بھیج دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے پی ڈی ایف میں نے ساتھ میں دیا ہوا ہے، جو الفاظ آئے ہوتے ہیں نا وہ الگ سے دیے ہیں آپ کو، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ با، با کے متعدد معنی ہے جن کی تعداد 15 تک پہنچ جاتی ہے، مثلا اس کے جو معنی نکلتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں اردو میں: سے، پر، کو، کی، ساتھ، مدد، بدلہ، وقت، میں، کے، بارے میں،
اس طرح اس کے معنی نکلتے ہیں، 15 معانی ہیں، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، اور وہ میرے خیال میں ویڈیو اس میں پڑی ہوئی ہے، ہاں بالکل پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں سے۔ اچھا، یہ جو با ہے نا، اس کا تعلق حروف کے اس خاندان سے ہے جن کو حروف جر کہتے ہیں۔ پھر میں نے بچوں کو نا حروف جر سارا بتایا کہ حروف جر ہوتے کیا ہیں، پھر سارا یاد کروایا ان کو، سارا قرآن مجید میں کتنے آئے ہوئے ہیں وہ بھی بتایا، اور جو نہیں آئے ہوئے وہ بھی بتایا ان کو۔ تو آپ کو تو یہ سارا تفصیل سے بتایا ہوا ہے، اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے دیا ہوا ہے ساتھ ویسے آپ کو دوسرے دوسرے پی ڈی ایف میں۔ الف لام، الف لام آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خاص یا تمام۔ جو الف لام ہوتا ہے نا، عام کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں نکرہ جیسے بیتن ہے تو اس میں معرفہ ہوگا البیتو۔ الف لام اور تنوین ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں آتے، یہ رول ہے۔ شیطان کی جمع ہے شیاطین، الف لام شروع میں لکھا گیا ہے، الشیطان اس طرح لکھا جاتا ہے، الف الف کے ساتھ بغیر دیکھو یہ اس کی شیپ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی شیطان جو ایسے لکھا جاتا ہے نا، تو کے اوپر کھڑی زبر ڈال کے، یہ الف لام کے ساتھ ایسے آئے گا، اور شیطان بغیر اس کے ایسے آیا کرے گا۔ اس میں مبالغہ ہے، یعنی کثرت ہے، شتنا یشتنو شتونن سے یہ نکلا ہے یہ شیطان کا لفظ، تو بہت دور ہونا اس کا معنی ہوتا ہے۔ شاتا یشیتو شیطان اس سے بھی ہو سکتا ہے نکلا ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے مکمل برباد ہونا، جل جانا۔ تو یہ وہ ہے شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسروں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یا پھر اگر شاتا یشیتو سے کریں گے تو یہ مکمل ہلاکت میں ہے اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کے جو ہے نا الفاظ ہے۔ شیطان کا جو اس کی جو شیب ہے شیطان کی، اس کا معنی تو ہم نے کہا نا، بہت ہلاکت والا، بہت دور کرنے والا۔ فعلان کا اس کی شیپ ہے، اور اس کے وزن پر آنے والے الفاظ میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی کثرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے اس میں۔ رحمان، غضبان، عطشان، زعلان، تعبان، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن میں شدت ہے، کثرت ہے، جوش ہے۔ اس طرح رجیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، یہ رجم سے نکلا ہے، رجم سے دور پھینکا ہوا، سنسار کہتے ہیں، سنسار اس کو رجم بولتے ہیں، پھینکنا، اور مردود ہے یعنی کہ اس کو رد کیا ہوا ہے۔ اچھا، رجیم یعنی فعیل کے وزن پر ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں مبالغہ ہوتا ہے اس میں، لیکن اس مبالغے میں تسلسل ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، استمرار، کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ رحیم، عظیم، شریف، عزیز، حسین، یہ سارے الفاظ جو ہیں اسی وزن پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بسملہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے، وہ ہے استعاذہ، اور یہ ہے بسملہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ با ہے شروع میں، با یہ وہی حرف جار ہے، اور با کا مطلب یہاں لیں گے ساتھ کے ساتھ۔ اسم کہتے ہیں اللہ، اسم کہتے ہیں نام کو، اور اللہ یعنی اس میں ذات، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ یہ اسم، اللہ کے نام کے ساتھ کیا، یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ شروع میں نا ایک لفظ محذوف ہے، کوئی ورب ہے جو محذوف ہے، وہ ہے اشرعو، میں شروع کرتا ہوں، ابتدو، ابدعو، میں شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، یا پھر ہے اقرعو، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہ الف جو اس کا ہے نا، یہ گر جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ اچھا، الرحمن، رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمان وہ جو شیطان میں ہم نے پڑھا فعلان کا صیغہ، وزن، یہ اسی طرح کا ہے، اس میں مبالغہ ہوگا، کثرت ہوتی گی، تو رحمان میں کیا ہے، رحمان کے رحم میں کثرت ہے، اور رحیم کے رحم میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ قرآن میں اسم جو ہے وہ کوئی 39 بار آیا ہوا ہے، اللہ 2700 بار آیا ہوا ہے، رحمان 182 بار، رحیم 39 بار آیا ہوا ہے، وہ میں نے الگ سے آپ کو دے دیا ہے۔ بسم یہ دوبارہ میں نے لکھ دیا، یہ بہت پہلے کچھ سال پہلے لکھا ہوا تھا، تو یہاں دے دیا ہے، اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا سلائڈ سے۔ الرحمن الرحیم ابھی یہ ذکر کیا ہے جس کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الف لام جب آتا ہے نا، الف لام کا مطلب ہوتا ہے تمام، حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا، اور اس کی ثنا، شکر کے معنی میں آتا ہے۔ یہ الف لام کا ترجمہ ہم تمام کرتے ہوتے ہیں، لیکن آپ تو عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ال کیوں آتا ہے یہاں پہ؟ ال کا مطلب ہوتا ہے پوری ٹائپ جو ہوتی ہے کسی چیز کی، جیسے حمد کی جو ٹائپ ہے نا، جو جنس ہے نا، تمام تعریفیں یا حمد کی جتنی بھی شکلیں ہیں نا، وہ سب اللہ کے لیے جو ہے نا وہ خاص ہے، وہ اللہ کی ہیں ساری کی ساری۔ جیسے میں کہوں کہ یار الکتاب مفید شیء مفید، کتاب بڑی مفید چیز ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی بھی کتاب، کتاب کی جو ٹائپس ہوتی ہے نا، میں کہوں گا یار الکتاب، کتاب جو ہے نا یار
बड़ी काम की चीज। या मैं कहूँ अल कहवतु यार शेउन लजीज, यार ये जो कहवा होता है ना, लजीज चीज है। तो मैं सारे कहवे की बात कर रहा होता हूँ। तो इसलिए हम इसका तर्जुमा आसान समझाने के लिए तमाम करते होते हैं। तो अलिफ लाम तमाम हमद व सना और सिफात और शुक्र जो है वो ले के लिए, अल्लाह अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, रब, रा बा बा है, ये बा दो दफा है, इसके ऊपर शद से हमें मालूम हुआ। तो इसकी जमा होती है अरबाब। इसका मतलब होता है पालने वाला, तरबियत करने वाला, और लम्हा लम्हा करने वाला। अल आलमीन, ये इसका आखिर में या नून निकाल दो ना, तो ये जमा के लिए या नून आता है। तो आलम किसे कहते हैं? दुनिया को कहते हैं, उसको जहान को कहते हैं, मखलूक को कहते हैं। तो तमाम मखलूकात का पालने वाला अल्लाह ही तमाम हम्द और सना का लायक है। हमद से बनने वाले अल्फाज तकरीबन कुरान मजीद में 70 बार तकरीबन आए हुए हैं। रा बाबा से बनने वाले अल्फाज 982 बार। आलम या आलमीन तकरीबन 73 बार तकरीबन आए हुए हैं। ये दोबारा फिर लिख दिया है ताकि फायदा हो आप लोगों को। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक उर्दू का लफ्ज है, मालिक खावंद, ठीक है, साहिब, इन सब के मानों में है। योम दिन को कहते हैं, ये भी उर्दू में है। दीन, दीन के दो मानी है अहबाब, एक होता है सिला जजा, और दूसरा माना इसका होता है निज़ाम, सिस्टम। तो दीन के मानों में ये दोनों माने आए हुए हैं कुरान मजीद में। तो यहाँ पर जो माना है वो है सिला और जजा का, कि ये कयामत के दिन का हम आसानी के लिए कहते हैं कि जजा और सजा वाले दिन का मालिक है अल्लाह ताला। ये फिर सारा मिल्क यानी मीम लाम काफ से मिलने वाले अल्फाज जो हैं वो 200 से भी ऊपर है। और योम अय्याम का जो लफ्ज है ना, ये 300 400 के करीब बन रहा है। तो इतने अल्फाज आते हैं। और दिन का 24 लिखा हुआ है, ये नहीं है। ये दिन का मैंने यहाँ लिखा है, देखो दिन का यहाँ पे 92 है, ठीक है, 92 बार आया हुआ है कुरान मजीद में। तो ये दोबारा भी लिख दिया है, इसमें भी आपको तर्जुमा अच्छा मिल जाएगा। इया का नअबुदु व इया का नस्तईन। इया का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। का तेरी, तेरा, तेरी, तेरे, सिर्फ तेरी ही। नअबुदो हम इबादत करते हैं, अंत तअबुदो तुम इबादत करते हो, तो नअबुदो हम इबादत करते हैं। अच्छा, वा और इया का और तेरी ही नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। ये जो इस नस्ताइन का लफ्ज है ना, नून तो आया है नहनो के लिए, तो सीन और ता जो है ना, ये आता है बाबे इस्तिफाल के लिए। बाबे इस्तिफाल यानी जो इस्तिफाल का शेप है ना, वो आता है। और इस शेप में क्या मानी होते हैं? इसमें मानी होते हैं मांगने के, तलब करने के। इसमें क्या मांगा जा रहा है? इसमें आइन, ऐन या नून, असल में ये लफ्ज था ऐन वाव नून, आउन से। आउन, आउन कहते हैं मदद को। तो हम तेरी ही मदद मांगते हैं। एह देना, हमें दिखा। एह दे, एह दे का मतलब होता है दिखा, चला। एह दे ना, हमें चला, हमें दिखा, हिदायत दे। ना हमें अस्सिरात, उस रास्ते की, अलमुस्तकीम जो सीधा हो, सीधे रास्ते की हमें हिदायत दे। बंदा तो ऑलरेडी नमाज में खड़ा होता है, इसमें इस्तिकामत मुराद हो सकती है, ऐसे इस्तिकामत, कि हमें इस्तिकामत दे इसी सीधे रास्ते पे, और हमें जिसी पे चलाए रख, तू ही चलाया रहने वाला है। तो ये फिर दोबारा लिखा है। इसके बाद देखें सिरात अल्लज़ीना, सिरात, सिरात का मतलब होता है रास्ता। अल्लज़ीना उन लोग का, उनका, ये देखो दो रंग इस्तेमाल किए हैं, सफ़ेद का सफ़ेद और काले का काला किया करें। अनअमता, इनाम किया, अनअमा का मतलब है ता तुमने, अलैहिम अला पर, और हिम उन पर, उन पर, तो उन पर जिन पर तूने इनाम किया है ना, उनका रास्ता दिखा हमें। वो कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया वो नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन है। उनका रास्ता हमें दिखा। गैर, सिवाय, ये गैर आता है सिवाय, इलावा, और ना के मानों में ना, न के। अल मखदूब अलैहिम, जिन पर तूने गजब किया। मखदूब मफऊल का जो है ना वजन है, मफऊल का जिस पे फेल होता है। तो मजलूम, जुल्म जिस पे होता है, मालूम जिसको जाना जाता है। तो ये मखदूब है जिस पे गजब हुआ होता है, उसका रास्ता न दिखा देना, और रास्ता न दिखा। वलद द्वालीन, और ना ही गुमराहों का। द्वाल, द्वाल जो है ये द्वाद लाम, लाम से निकला है, गुमराह को कहते हैं। और लीन, ये आखिर में या नून लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जमा है। तो गुमराहों का रास्ता भी ना दिखा हमें।
हाँ, और फिर इसकी लिखा है कि कितनी कितनी बार आया हुआ है, ये दोबारा फिर यहाँ पे लिखा है। और इस सूरत के आखिर में जो है इस सूरत में बहुत सारी दुआएं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद जो है आमीन कहा करें। तो आमीन जो है, फिर आमीन का मतलब होता है हमारी दुआ कबूल फरमा। और मैंने देखा है ईसाई भी आमीन कहते हैं, अभी अब खाना खाते हैं तो आमीन आमीन कहते होते हैं, बाकी दुआ तो उनको सारी बोली हुई है, ये आता है उसको। सूरह फातिहा के लिए ये देखो, ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने के लिए है ना, जो अच्छी बहुत सारे अब तो बहुत सारे आ गए हैं ना, लफ्जी तर्जुमा वाले आ गए हैं, और फिर मुहावरा सलीस उर्दू में भी तर्जुमे आ गए हैं। हाँ, तो जितना भी आपको आसानी जिससे लगे वो पढ़ा करें। और ये जो है ये कुरान आसान तहरीक के नाम से जो है ना एक किताब है, बड़ी प्यारी तर्जुमा ने किया हुआ है कि दो रंग इस्तेमाल किए हैं इसमें। तो अल्हम्दु का तर्जुमा है सब तारीफें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब्बे जो रब है अल आलमीन सब जहानों का। इतना जबरदस्त तर्जुमा किया है इन्होंने, बड़ा प्यारा तर्जुमा किया है कि तर्जुमे का जो है ना गलत भी नहीं होता, ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, और तर्जुमा भी हो जाता है, बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा हो जाता है, और वही तर्जुमा सलीस भी बन जाता है। तो ये बड़ी प्यारी जो है ना वो किताब तर्जुमा है, बड़ा प्यारा तर्जुमा किया है, ये मौलाना शबीर साहब है कोई, उन्होंने किया है, कुरान आसान तहरीक के नाम से। ये किताब ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन ये जो है ये 150 MB है, ये आता आता नहीं है उसमें, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा ये कभी भी। इसलिए आपको लिंक जो है वो भेज देता हूँ, आप उस लिंक को जो है ना करें, डाउनलोड करें वहां से अपने लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। ये वैसे भी घर में भी रखें तर्जुमा ये वाला, कभी भी आपको कुरान मजीद के दरमियान से भी जरूरत पड़ जाए ना, तो आप आराम से दरमियान से खोल के उसको देख सकते हैं, लफ्जी तर्जुमा देख सकते हैं, बड़ा प्यारा है लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद है ये लफ्ज अल्लाह की तहकीक जो आपने अभी पढ़ा है, उसमें से अल्लाह को हमने छोड़ दिया था, तो वो देखें कि क्या है अल्लाह। ये जो लफ्ज अल्लाह है ना, इसको इसमें ज़ात और इसमें जलालत कहते हैं। ये इसमें ज़ात के साथ खास है, जो कि तमाम सिफात कामिल का कमाल है, यानी जितने भी कमाल की सिफात है ना उसका जामे जो है ना वो ज़ात अल्लाह कहलाती है। लुग़वी एतबार से लफ्ज अल्लाह के बारे में दो आरा है, एक ये कि ये इसमें जामिद है और इसमें अलम है, ना यानी ना इसका कोई मादा है और ना किसी और लफ्ज से बना है, बल्कि ये इसमें ज़ात है, उस हस्ती का नाम है जिसने इस सिलसिला कौन और मकान को तख्लीफ फरमाया है। दूसरी राय यह है कि ये भी बारी ताला के बकिया तमाम अस्माए हुस्ना की मानिंद सिफाती नाम है, और लफ्ज इलाह पर अलिफ लाम दाखिल करके बना है, और इसके माने होते हैं माबूद बरहक। मजीद तफसील जरा इसको देखें, जो ये कहना चाहते हैं कि ये मुश्तक है, यानी किसी से लिया गया है। कलिमत अल्लाह की असली हरूफ क्या है? अलिफ लाम और हा, जिसका माना होता है माबूद, इस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया गया तो ये बन गया अल इलाह। फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से दरमियान वाला असली हर्फ जो है ना था वो हमजा, उसको बन गया ये अल इलाह से हजफ कर दिया गया, और इस तरह ये अल्लाह बन गया। अल इलाह और अल्लाह के मानी हकीकी माबूद के हैं जिसकी ज़ात मुस्तहिक इबादत है। फिर लफ्ज़ अल्लाह की मादे की तहकीक भी एक दकीक और तवालत तलब मामला है, लेकिन तीन मफहूम जो है ना वो इजमा है उस पे, कि इलाह जो लफ्ज़ है ना, या अल्लाह जिस इलाह से जो बना है, ये वो हस्ती है जिसकी तरफ हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए रुजू किया जाता है। दूसरा, इलाह से अल्लाह जो बना है वो हस्ती जिसके बारे में अकल हैरान है, वो जात अल्लाह कहलाती है। तीसरा, कहते हैं कि वो हस्ती जिससे वालिहाना मोहब्बत की जाए। तो अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो साफ नज़र आ जाएगा कि अवाम नास जो है रसाई उनकी जो है वो पहले मफहूम की तरफ है, दूसरे में जो है वो फ़लसफ़ी हज़रात जो है वो उसमें है, और तीसरे में जो है वो सूफिया कराम है या बड़े औलिया अल्लाह जो होते हैं वो उस मानी में है कि वो अल्लाह ताला को अल्लाह से मोहब्बत करते होते हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर ये अल्लाह की तरफ से है, और इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा रिसाला भी है इलाह के मानों में कि अलहा है ये लफ्ज़, अल्लाह किस से बना है, तो उन्होंने कोई 8 के करीब इसके मादे दिए हुए हैं कि मादा अल्लाह किस से बना है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह का नाम हम ऐसे कहते हैं जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद है ना, इसी तरह जो है ये मुश्तक नहीं है बल्कि अल्लाह का नाम है, ज़ाती नाम है, उसका तर्जुमा अल्लाह करना चाहिए। अल्लाह ही रखे, इसमें ज़ात कहा करे, इसमें जलालत कहा करे, तो ये किसी से नहीं निकला। लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे ना इलाह का माना क्या है, हर माना ही खूबसूरत है। इलाह का माना जब भी करेंगे आप, बड़ा मजा आएगा आपको।
देख के पढ़ने से। ये किताब भी मैंने आपको भेजी है, मारिफ इसमें अल्लाह के नाम से, छोटा सा किताब है। इसमें ये 8 मादे लिखे गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से खत्म हो, यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। और हाँ, ये हाँ, ये देखें, ये जो है, ये देखें, ये वो अल्फाज हैं जैसे, ये क्या है, रजम, रा जीम मीम से बनने वाले कौन से अल्फाज हैं, ये सारे लिख दिए हैं यहाँ पर। इस तरह इसम, ये अलिफ सीन, या अलिफ इसम से किससे निकला है, सुमूफ से, सीन मीम वाव से निकला है, तो वो सारे जो है ये सारे लिख दिए हैं अल्फाज। इस तरह अल्हम्दु का हमद जो है, हा मीम दाल से जो अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं वो सारे लिख दिए। इस तरह ये सारे अल्फाज हैं, उसमें आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ फायदा होगा इससे भी आपको, उसमें कुछ वसअत आती है, सोचने समझने में फायदा होता है। हाँ जी, ठीक है जी अहबाब। कोई सवाल अहबाब इसमें से, कुछ समझ आया, कुछ फायदा है इसमें आपके लिए? जी जी, बहुत फायदा है। हाँ जी, तो बस ये आपको शेयर कर दिया है सारे आपके ग्रुप में, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से पढ़ लें इसको, अच्छा है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अनवाए मारिफा, हाँ, पढ़ने देख लें। अच्छी किताबें और तो भी आती टाइमिंग रहेंगी। वगैरह होगी? जी जी। टाइमिंग वगैरह वो स्टार्ट कर दिया जो आप उस वक्त प्लान कर रहे थे थोड़े नहीं, दिन पहले? ये देखो ना, ये देखो, ये आपको मैंने शेयर किया एक लिंक ना टीचर ग्रुप में। ये देखो, मैं इसको दबाता हूँ, आप तो कभी टाइम नहीं देंगे इसको। ये जी हमारी नहीं सर, मैंने वेबसाइट, किया तो यहाँ पे खुल जाता है, ये तो मैंने हाँ, पहले भी पढ़ा हुआ अच्छा अच्छा, ये हमारे जो है ना, ये वेबसाइट बनी है इसकी सोर्स कोड वालों की, ठीक है। तस्वीर देख रहे हैं आप, है जी? है। जी जी। जी क्या जी ख्याल जी है, जी कैसी है? सिर्फ तो अच्छी निकली है। ये ढूंढ के उन्होंने, कोई जो वेबसाइट वाले थे उन्होंने ढूंढ के निकाली है कोई तस्वीर, बड़ी मुश्किल से ऐसे मिलती है। और देखा मैंने। अब जैसे इसमें है, तो मैं देखो, ये मेरा असदुल्ला का खुला हुआ है ना, तो ये यहाँ पे लॉगिन लिखा होता है, लॉगिन, ठीक है। तो जैसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ, चले, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये ऐसे ऐसे खुलेगा, तो आपको ये सारा आपकी ईमेल के थ्रू ना आपको मिल जाया करेगा, ठीक है, पासवर्ड बेस का। तो ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में जाया करेंगे, मैं टीचर हूँ तो टीचर में जाके ना लॉग इन होता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जाके ये देखो, मेरा शेड्यूल ये है सारा पड़ा हुआ, स्केजुअल, ये देखें, ये अभी हम 24 में है, तो ये है। और ये सारे ये हमें बताते रहेंगे, लेकिन मसला कहाँ है, ये देखिए, देख रहे हैं स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट जब दबाऊंगा मैं, जी। तो स्टूडेंट के सामने ना यहाँ पे अभी जीरो है, अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ ना। तो ये मैंने कुछ लिखा सही। था, जो हमारे हजरत हैं हमजा मुगल साहब है आजकल, अस्सलाम वालेकुम, मेरे स्टूडेंट्स कब तक अपडेट होंगे वेबसाइट पर ताकि क्लास ले सके थ्रू वेबसाइट, मंडे तक हो जाएगा? तो हजरत ने जवाब नहीं दिया अभी तक, वो देंगे जवाब, जब जवाब सही। देंगे तो फिर मैं आपको जवाब दे सकूंगा। ये उन्होंने कब रेट किया है, शाम को, तो खैर है, कोई मसला तो नहीं सर, मतलब अभी दोपहर को आप नहीं पढ़ा रहे? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई आता है तो पढ़ते हैं, मुझे तो बैठा होता हूँ, आप आया करें, मुझे बताया करें, मुझे पता हो तो फिर मैं बैठा रहूँ ना, ऐसे मैं क्या करूँगा बैठे बैठे। आप आए तो आ जाए, तशरीफ लाए ना, मैं बैठा रहूंगा इंशाल्लाह। चलो। अभी है नहीं असल में ना, तो वो मैं इसलिए भी जरा तो से पीछे हो गया, लेकिन आप आते हैं तो बताएं, आपको दिन का अच्छा है, किस वक्त आप चाहते हैं? सर मैं आया था तकरीबन कल, शायद आपको जब कॉल किए मैं था और साथ में कोई नहीं, ऐसे नहीं ना, देखो, नहीं ऐसे अननोन, नहीं ना, ऐसे ना करें ना कि एक दिन आप हम दो आए। स्टूडेंट्स थे सर। हाँ, एक दिन नहीं ऐसा नहीं, नहीं, हाँ, तो एक दिन आपने नहीं कहा था आना। कि जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको, मैं तो सर आने के लिए तैयार, मैं डेली आने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो शाबाश। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि आप अभी मतलब स्टार्ट नहीं किया उस टाइम पे पढ़ाना, हाँ, वो नहीं स्टार्ट तो मैं किया ना वो असल पूछ। में, ये देखो ये टाइमिंग, हाँ, ये असल में टाइमिंग सारी ये सेट की है, ठीक है। लेकिन उस पे जो है ना वो लोग आते नहीं है, अब मैं अगर आया करे ना तो मैं भी आया करूँ टाइम पे। लेकिन एक बच्चा आए, एक दिन आए, एक दिन ना आए, तो मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा, फिर वो तरीके ना, ऐसे में सारे काम छोड़ के बैठा होता हूँ। तो आप बताएंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं आता रहूंगा यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप आए। और चलो कारी ठीक है साहब को सर। भी कहा है, तो अभी है नहीं असल में, मैंने ये अर्ज की है कि मंडे से रेगुलर हो जाए, तो फायदा होगा हमें भी, ये शुरू कर दें। लेकिन उनके पास वो कह रहे हैं 200 के करीब हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, 200 300 इसके पास, तो वो उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा ना टाइम ले रहा है, इसलिए हम ये पुराने सिस्टम पे ही क्लासेस ले रहे हैं। सही। अरे रब्बा सही। करी, ये चक्कर है जी। कोई और सवाल हबाब है, कोई गपशप है तो बताएं।
छुट्टी है 2 दिन, कुछ सर ना कुछ। मुझे 920 वाले पे ऐड कर देंगे। 920 में ये कहाँ है यार 920 पर? 920 वाले में कहाँ, कौन है वो? 920 तो मेरा ख्याल में भरा हुआ है। हाँ ये देखो ऑलरेडी एक बंदा एक्स्ट्रा है, देखो कौन? आप फायजा बात कर रही हो? अम्मा? नहीं नहीं, हाँ। आयमा। सर आप मैं तो 6 o'clock वाले में थी ना, तो अब मैं 920 में आ रही हूँ, तो मैं नहीं, उस ग्रुप आपका तो में नहीं है ना, एडेड। आपको किया मैंने, देखो नहीं आपने देखा नहीं, आप तकलीफ ही नहीं करते जालिमो। कोई जाके नहीं देखो। सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रही हूँ, मैं मुझे पता है, मैं अच्छा इसीलिए अच्छा नाइन अच्छा, ट्वेंटी हाँ पे हाँ आई। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, वही मैं खुद हैरान हो गया यार, आपको तो मैंने स्पेशली इसमें डाला हुआ है। आप कैसे कह सर रहे हैं कि मुझे मुझे पता पता नहीं? है, मैंने अच्छा ही अच्छा आपको अच्छा रिक्वेस्ट की थी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एंटर कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी असल में ना व्हाट्सएप ग्रुप सारे पुराने चल रहे हैं ना। ये देखो 6 AM चल अच्छा रहा है, देखो 6, अभी ये सारे एक दफा ही चेंज करूंगा ना, जब वहां से हो जाएगा ना, तो आपके नए ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है। और ये तो एक एक यानी अभी बैठ के मैं कर सकता हूँ ना, फौरन कर सकता हूँ। तो जो है ना वो कर सकते, ये कर लेंगे इंशाल्लाह। खैर अभी फिलहाल अपने ग्रुप में जरा इजी हैं लोग ना। ठीक है। ये आपके ग्रुप जो है ना, ये वाला 6 AM वाला, इसमें तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है ना, देख रहे जी हैं आप सर। ना? कोई ना कोई सलाम दुआ तो जी कर ही जी। ले रहा है ना, तो 9 20 में आप जो है ना वो तवक्को न रखें कि वहाँ कुछ हो रहा है। वहाँ माशाल्लाह से वो वहाँ जो है ठंड है, अभी अभी दिसंबर चल रहा है वहाँ पे। ये देखिए दिसंबर, हाँ दिसंबर चल रहा है। हाँ चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। ये 17 को ये बेचारे जो है ना यहाँ बर्फबारी पड़ी थी, 17/2 को। 17/2 से क्या मुराद है? हाँ हफ्ता पहले। तो ये बर्फबारी पड़ी थी बस ना, सत्रह डॉक्टर साहब ने, फरवरी हाँ डॉक्टर साहबा ने मेहरबानी फरमाई है। इसके अलावा जो है बस यहाँ ठंड है, देखो ये देख रहे हैं, ये मेरे 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 वाले सारे आए हुए हैं। ये और कुछ नहीं आएगा, डॉक्टर साहबा थोड़ी मेहरबानी फरमाती हैं, देखे ना। 8 फरवरी को भी उन्होंने हम्म। मैसेज किया है, उनकी मेहरबानी है। उसके ऊपर भी वो कप लगा रही है, देखिए। तो ये जो 6 वाले हैं ना, जो 6 वाले हैं वो तो अच्छे लोग हैं यार। ये रबी है, सना है, सुबह सुबह मिस कॉल भी दे देते हैं मुझे। ये वाले, ये है। जी सर। ये देख रहे हैं, ये हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी वो मदद कर रहे होते हैं, कभी मैं मदद कर रहा होता हूँ। हमारी ना कोई गपशप चल रही होती है। तो अच्छी हम्म। बात है, चलो आते रहेंगे, अभी फिलहाल ठीक है फिलहाल। ये देखो रबी ने ये ठीक। लिखा था, हाजिही साअती साअती समीना व जमीला व अकारिबुहा दकीका लौनुहा सौदा उम्मी अहदाहा अलैया ना ली, अहदाहा इलैया, इलैया कर दे उसको, ईद अल फित्र। بساعتي أنا عارف ميعاد المدرسة إذا عندي ليس लम्मा होता है, लम्मा, लम्मा जब कभी भी, जवारी अना उहिब्बु साअती। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है। ये रबी की तस्वीर भी मैंने शेयर की है, कुछ ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, ये लोग अच्छे लोग हैं। हम्म। हाँ। तो ये ग्रुप भी अच्छा हो जाएगा, आप आए यहाँ पे, अभी यहाँ पे और लोग आएंगे ना, तो डॉक्टर साहबा को भी कंपनी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और लोग गपशप लगाया करेंगे, तस्वीरें सर। शेयर कर दिया करें, कुछ ना कुछ बोल दिया करें, कोई अच्छा कोट वगैरह मिल जाए आपको तो वो भी शेयर कर दिया करें। अरसलान आपने कहाँ कुछ लिखा हुआ था यार, वो कौन सा ग्रुप है? सर वो मेरा कितने बजे वाला है, 4 बजे वाला है शायद। हैं? 4 बजे में? आप चार एक बजे में? सेकंड। चार 4 बजे वाली। 4 PM। बुशरा, बुशरा ने भी आज किया, हाँ ये देखो ना ये क्या था, और मैं मेरा जवाब समझ आया आपको? जी जी जी। आपने क्या लिखा? और आपने कहा यस, द पैसेंजर जो जाने वाला होता है, मुसाफिर मतलब वो हाँ आपने उससे क्या लिखा ज्यादा, है? आपने क्या लिखा है? हल मतलब होना का कोई अय जी जी। शे महजन और मुहजन या महजन या महजन मिन मुगादरत क़ितार लिल महत्ता। ये कहाँ से कॉपी किया था? उससे उससे लिया था, गूगल से। गूगल, शेख हाँ गूगल। अच्छा। तो जब गूगल साहब फरमा रहे हैं कि यार इससे ज्यादा कोई अफसोस दे मंजर हो सकता है, ये जो जब ट्रेन जा रही होती है, ट्रेन से कोई है कोई, तो ये मुसाफिर है, और मुसाफिर का फिर दिल है जी, उससे भी ज्यादा गमगीन। वैसे ट्रेन का अलग से ही है, बिल्कुल अलग है। और मैं अक्सर लेके जाता हूँ बच्चों को, बेगम को लेके जाता हूँ ट्रेन दिखाने के लिए, कभी हम बैठे नहीं है, लेकिन दिखाता हूँ कि नहीं यार ये बैठे। हाँ नहीं बैठा, मैं बैठा हूँ एक दफा, लेकिन अच्छा बच्चे आप नहीं बैठे। बैठे। मैं बाहर फिरता रहा हूँ, मैं बाहर फिरता रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, पाकिस्तान में मौका ही नहीं मिला। नहीं।
लेकिन बच्चों को मैं स्टेशन दिखाता रहता हूँ, उससे खुशबू आती है, 100 साल पुरानी खुशबू आती है, बहुत मजा आता है। लो अहबाब, अपना ख्याल रखो, लव यू करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह। दरमियान में कुछ ना कुछ गपशप करते रहें, कुछ ना कुछ बोलते रहें, कुछ ना कुछ शेयर करते जाए। अस्सलामु अलैकुम इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम।